Hi. Hello, Sarika. Hi, how are you? Yeah, I'm doing very well. Are you nervous? Yeah, a little bit because this is something that I'm doing for the first time. No, but I am actually मुझे तो बहुत I'm very excited that you are here क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए. So I hope you are ready Oh, to answer. Don't be scared. no, Okay. no, 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 I'm okay. Yeah, Yeah. good. So before I introduce Abhilash to our viewers, I just wanted to tell you all that Abhilash and I have been friends on Facebook. अब कितने 8 साल हुए होंगे? आठ definitely सात आठ शायद. साल. Yeah, Yeah. but we never spoke, we never interacted. But in these past few months, I guess जब आपका COVID report positive आया था, that's when I messaged you, Hmm. and then since Right, then right. we started talking. So ऐसे भी होता है कि someone is your friend for so long पर आप बात नहीं करते. So it's really nice actually to connect with you. And thank you Thank so you. much for taking the time out to be on the show. और ये शो के बारे में अभिलाष आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट दिस शो इज इंस्पायर्ड बाय ओ माय डॉग रॉक्स दे हैड अ शो कॉल्ड हाउ डॉग्स चेंज माय लाइफ और उस पे मैं उनकी अच्छा. गेस्ट थी हाँ सनी लूथरा ही रन्स द पेज एंड मुझे Okay, डॉग्स okay. तो बहुत पसंद है सो आई हैड जॉइंड हिम टू टॉक अबाउट डॉग्स तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ हम बुक्स के बारे में कर सकते हैं एंड दैट्स हाउ माय रीडिंग जर्नी स्टार्टेड ओके Nice, सो nice. Yeah. yes. So Abhilash is a book blogger. He has been blogging since the past 11 years, which is amazing. क्योंकि बहुत सारे लोग एक दो साल में ही गिव अप करते हैं, but 11 years is awesome. Yeah, he has some 1900 blog posts, of which 700 posts are book reviews. वो movie reviews भी लिखते हैं, which they are amazing. We are going to talk about that later. And speaking of his work, he's a business analyst in an IT firm, and he lives in Mumbai. So, Abhilash, first and foremost, I want to know. Oh, someone is saying ARB is best in the book world. Yes, we know. Yeah. Yeah, Thank you, Kostu. yeah. So, so Abhilash, firstly, I want to know how did you get into books? आपकी पहली memory क्या है about books? So, बिकॉज मेरे पापा मम्मी हिंदी मीडियम से आते हैं हाँ. तो उनको ये था कि थोड़ा मैं ज़्यादा इंग्लिश की तरफ इंक्लाइंड रहूँ सो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैड द सब्सक्रिप्शंस ऑफ चंदा मामा Hmm. चंपक एंड ऑल ऑफ दोज बुक विजडम सो आई यूज्ड टू गेट दी सब्सक्रिप्शंस एवरी मंथ एंड ऑन संडेज और सैटरडेज व्हेनेवर आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स कि मेरे को खेलने जाना है तो आई हैड दिस टास्क कि पहले बुक खत्म करो या ये स्टोरी खत्म करो हमको सुनाओ एंड ओनली देन यू कैन गो एंड प्ले आउटसाइड. So Okay. that is how it all started. But then eventually, when we came in ninth or tenth, then the focus Hmm. starts towards the board exams. Correct. So it all got lost somewhere. Then in 11th, 12th, I went to hostel. So again, that habit did not continue along. Then I shifted to Mumbai in 2009, Okay. and because we were exploring our nearby places, so I got to see a person who sits with pirated copies. As you must be knowing that हाँ. even in Pune there are many. Of course. So then I asked him कितने रुपए में दोगे तो he said 50-60 rupees. मैंने कहा ये तो बहुत सही है. So and if you I don't know since when you started but when Indian authors started coming into picture after Chetan Bhagat wrote almost हाँ. everyone used to Same write same on time. college campus stories Yeah. itself. Hmm. Yeah, so all the title of the books used to be very interesting. So either friendship related or Hmm. girlfriend related or Yeah. college related. So I got little bit interested and I picked up 7 to 8 books from there. And when I read them, it was something beyond my imagination कि ऐसा भी होता होगा क्या colleges में हाँ. because I came from second tier cities and this was my first when I was getting relocated in Mumbai, a place like that. So then वहाँ से जो जर्नी चालू हुई जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ so after a time I thought when I am reading it and enjoying it a lot so Hmm. even my friends needs to know that there are books like this which if you will read you will have to you will get a very good Yeah. thing to spend your time with. Hmm. Hmm. So then I started writing about these books also on my blog and everywhere on Facebook. Those days Instagram did not used to be there, Yeah. so only on Facebook I used to promote it, and there used to be some I don't remember the exact name, but some Google site. I don't Hmm. remember, not Orkut, not Google Plus, but there was something different. Google Buzz. Okay. It was introduced and then it got stopped for after 2 years I think. So अच्छा. यहाँ पे मैं promote करना चालू किया मैंने. So that is how I got into books. So it was अच्छा तो right since childhood. yeah.
And तो the आई second थिंक journey started when I got to Mumbai. या आप टीनेजर हो गए शायद at that time when you started Ah, buying yeah, your yeah, own yeah. books. Yeah. Yes, yes, yes. I So was just starting my college, my graduation. या मेरा भी Yeah, सेम है एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल हैबिट टू डेवलप क्योंकि उस एज पे लोग बहुत कुछ चीजों में जाते हैं एंड इफ यू गेट इनटू बुक्स आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग yeah. सो दैट्स अमेजिंग तो अभिलाष आई वांट टू नो हाउ हैव बुक्स हेल्प्ड यू बिकम हु यू आर ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक्स है जो पढ़ के आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ अबाउट एनीथिंग Yeah, so it was around in 12th standard when I was not doing very good in studies, and there was no kind of motivation in life. So just while talking to one of my friends, they mentioned this book by Robbie Sharma, Who Will Cry When You Die. ओके So when I heard the title, I thought यार ये तो बहुत अच्छा टाइटल है कि आपके मरने के बाद कौन हाँ रोएगा. मैंने कहा क्या होगा इसके अंदर. तो उन्होंने थोड़ा मेरे को ये किया कि चलो आप जाओ वो बुक खरीद के लाओ पढ़ो. So me and my father went to नासिक स्टेशन, प्लेटफॉर्म टिकट लेके वहाँ व्हीलर स्टोर से जाके वो बुक खरीद के लाए. And when I read that book, so there are many. When you will read a Robin Sharma's book, you will find many quotes. Means almost all the sentences in his book is like a quote only. You can share anything out of them. Huh? So there was one sentence which said, "Life is too small to do small things." एंड इट आई डोंट नो, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया मेरे ऊपर. एंड आई थॉट कि चलो ये पूरी बुक मैं पढ़ता हूँ. और मैंने वो बुक पढ़ी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट इंटरेस्टेड टू वाज डूइंग समथिंग इन लाइफ. एंड देन आई ऑल्सो somehow passed my 12th, which I was 100% sure of failing, debunking there. And then later on, around after 5 years of reading, I started getting spiritual books. So स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या बातें हो रही हैं, माइंड, सोल, बॉडी, एनर्जीज, क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है. बट देन आफ्टर रीडिंग कपल ऑफ 4 to 5 बुक्स ऑफ सच काइंड, तो मेरे को थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने लग गया. समझ में आने लग गई कि इट इज नॉट ओनली अबाउट सक्सेस और फेलियर और मनी और हाउ मच रिच और पुअर यू आर, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, एंड एवरीथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी कॉल्ड एज हैप्पीनेस इज ऑलवेज विद इन यू. So then I got into the spirituality also, and then in 2018 I eventually did a meditation program, and then I try to do it regularly. So then that has also helped my perspective to grow a lot. So initially books motivated me, and later on in this second, you can say the second part of the books reading journey has been about spiritual growth. So that is how books have helped me till now. वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि मैं आपके पोस्ट देखते रहती हूँ एंड इवन आई एम स्लोली गेटिंग इनटू मेडिटेशन एंड यू वर्किंग माय माइंड. अभी ये लॉकडाउन में बहुत कुछ स्टार्ट किया मैंने, सो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बुक्स. तो अभिलाष, हु आर योर फेवरेट राइटर्स और आपको कौन से जॉनर पढ़ने में अच्छा लगता है? So see, मेरे को तो fiction, non-fiction दोनों पसंद है. Yeah. So when you talk about fiction books, so frankly speaking, I have never attempted a foreign author till now. And so how it all started was that I felt when, as I told you, my 11th, 12th was in hostel, so I had a lot of memories and lot of things had happened with me. तो मुझे लगा कि यार should I write a book on this? So I thought कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा सपना तो नहीं हो गया. And then I started writing blogs. मैं कहा चलो एटलीस्ट ब्लॉग लिखना चालू करते हैं. So when I started writing blogs, तो फिर मेरे को कई लोगों के कमेंट आने लग गए कि you write like him or you write like him. So मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं इनको भी ये कैसा लिखते हैं. लोग कह रहे हैं इनकी तरह लिखता हूँ तो. So then I started reading. तो fiction और non-fiction दोनों इंटरेस्ट के हैं. So I would not shy in saying कि मैंने भी चालू चेतन भगत के साथ ही किया था. Yeah, of course. And I don't, and I don't find him that weird the way he had been, portrayed across all the social media posts or the memes world. He is an okay writer. I understand that his last 5-6 books have not been very good, but his initial 4-5 books were actually something that entertained you. Yeah. So I started with him, then I moved to Durjay Datta. I even liked him a lot. Then in between I got little bored of his, too much intimacy same and that old kind of scene. Yeah, same older stories. But again, he also transformed himself as a writer. So now I like reading Durjay Datta a lot. Then talking about Preeti Shenoy.
So Yeah. she is a female author, and she is the first author who made me understand the girl's perspective of any kind of story or relationship one is in, either as a wife or a girlfriend or a friend, as a mother. So I like reading Preeti Sharma a lot. I don't think I have missed her any book of hers till now. Only Yeah, I one book don't is think pending so. to be read. Yeah, so I'm going to read it in January itself. And then Amish Tripathi has been, a kind of inspiration for me, because when he came into this literary space, I think in 2010 itself, and everyone was talking about the book of Milhua, and I was very, skeptic if I should pick it up, because I was Yeah. reading Chetan Bhagat, Durjoy Datta, मुझे लगा मेरे को समझ में भी आएगा क्या. Yeah. But when I picked it up and I read, it was such a beautiful world that he creates in his book, that I got lost into that, and since then I don't think I have even skipped any of the Amish Tripathi book. Also, I even have his latest release Dharma with me. I'm also going to finish it in maybe in January itself. So, and then two authors again that I would like to mention is Ashwin Shanghi. So Ashwin Shanghi is an amazing writer. The kind of research work or everything that he does, that is amazing. Yes, we lost the connection. तो मैंने बस रवि सुब्रमण्यम का नाम सुना. After that, I Okay, didn't okay. catch what you said. Yeah. So can you hear me now? Yeah. Now it's fine. Okay, okay. So I was taking, he generally writes about banking thrillers, the way we saw it in Harshad Mehta's story. So knowing about that perspective is also very interesting in his books. His books are very fast paced. मतलब हर एक sentence में story बदल रही होती है. Kind of race series. So Ravi Subramanian is another author that I like reading a lot. So these are my favorite authors when you talk about fiction. And coming about non-fiction, so because non-fiction writers generally don't write many books, but then I have read Dale Carnegie and I liked him a lot. I have read lots of Sadhguru's book, and Sadhguru's books are amazing. And Hussain Zaidi is another author that I like a lot, because he talks about this terrorist and gangster world that Mumbai once used to have with Dawood Ibrahim and all of that. So his book Headley and I, or say I Am Abu Salim, or Dongri to Dubai, Mafia Queens of I think so Mumbai, or I don't remember the name, but Mafia Queens is the word in the title of the book. So Hussain Zaidi is also an amazing author, and I'm lucky enough to meet all of them in my life, except Durjoy Datta, I think so, and Preeti Sharma. Yeah, I have met almost all the authors that I love. That's amazing. I have met Amish, or he's an awesome guy. बहुत friendly थे वो. Yeah, that was long time back. मैंने तो उनकी I've just read Immortals of Meluha. मैंने बाकी के नहीं पढ़े, but he's a very nice guy. So that's amazing यार, क्योंकि ये books मैं इतने ज़्यादा नहीं mention करती अपने page पे. I'm more into a different genre. So it's amazing that you shared it with us. Thank you so much. Yeah. और so I want to know कि अब आपने आपकी ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में भी बताया, हाउ यू गॉट इनटू ब्लॉगिंग. और मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो यू दैट वेल, पर मुझे ऐसे लगता है कि आप भी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप्स हो. सो फॉर यू हैविंग द प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास मतलब मैं तो फुल ऑन इंट्रोवर्ट हूँ. आई डोंट टॉक टू मेनी पीपल. तो व्हेन आई हैव दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, इट्स रियली अमेजिंग दैट आई कैन डू इट, और बहुत फ्रीली कर सकती हूँ मैं. सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कीप ब्लॉगिंग? ओके, सो ब्लॉगिंग जर्नी चालू कैसे हुई? तो पहली बात तो 2009 में मैंने चालू किया था. 2009, इट हैज बीन 11 years since then. सो आज से 11 साल पहले तो किसी को ब्लॉग का वर्ड भी नहीं मालूम था कि ब्लॉग क्या होता है. तो व्हेन आई केम टू मुंबई, तो मैंने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कराया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड ऑलमोस्ट एवरी अनदर डे देयर यूज्ड टू बी एन आर्टिकल अबाउट अमिताभ बच्चन्स ब्लॉगिंग. So I thought कि क्या लिखते हैं अमिताभ बच्चन, चलो जाके पढ़ा जाए. And at that time he had around 350 some posts. I read 1, I read 2, I read 3, and then I thought यार ये तो मुझे अमिताभ बच्चन की लाइफ के अंदर की कहानियाँ पता चल रही हैं. How he thinks, how he processes himself, what he thinks about approaching work, why does he work for 18-20 hours. So then I got very excited, and आप believe नहीं करोगे, but in 2 or 3 nights I read all of 350 posts that he had written. And then I can't believe it, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो. नहीं, तब मैं नहीं पढ़ता था. बिकॉज तब ये मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग जर्नी की पहले की बात, क्योंकि ब्लॉगिंग भी नहीं चालू हुआ था तभी तो.
सो व्हेन आई रेड इट मुझे लगा यार ये ऐसे तो मैं भी बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सो देखते हैं कैसे होता है. आई सर्च हाउ टू ओपन अ ब्लॉग, आई रोट माई Yeah. फर्स्ट पोस्ट, आई रोट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड मैंने कुछ स्टार्टिंग के 50 दिन लगातार 50 ब्लॉग्स लिखे थे. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड बस उसके बाद फिर वो थोड़ा स्टार्टिंग में तो मैं काफी नंबर गेम्स में रहा कि 100 पोस्ट हो जाए, 200 पोस्ट हो जाए, 300 पोस्ट हो Correct. जाए. अच्छा लगता था मुझे, बट लेटर ऑन थोड़ा स्पीड भी स्लो हो गया. और स्टार्टिंग में मैं एक साल में, सो यू कैन इमेजिन 360 डेज में मैं 260 270 पोस्ट लिखता था. सो ओनली Wow. फॉर 100 days आई वुड नॉट राइट, अदरवाइज आई हैड ऑलवेज रिटन अ ब्लॉग. But then it eventually got down to 100 or say 70 80 now, since I started working and 100 other responsibilities came up in life. So क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बुक पढ़ने में स्पेंड होता है Yeah. एंड Exactly. लिखने में कम. और फिर बस दैट इज हाउ यू नो. और एज यू सेड अबाउट इंट्रोवर्टनेस, तो कई चीज़ें हैं जो यू फील दैट आई हैव अ पर्सपेक्टिव दैट आई थिंक many must be thinking alike. And if not, then let's tell them my point of view and see what do they think about it. Yeah. So that is what keeps me motivated कि चलो इसके बारे में बात किया जाए. So मैं पहले तो बहुत कुछ लिखता था पॉलिटिकल और ये सब रिलीजियस, बट बिकॉज ऑफ फ्यू इश्यूज दैट हैपेंड क्वाइट बैक फिर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा कि ये सही नहीं है टू गेट इनटू दिस, माय फैमिली माइट आल्सो गेट इन्वॉल्व्ड. Yeah. एंड ऐसा हुआ भी थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने रोक दिया. Then now I only talk about books or spirituality or some popular stuffs and not much depth into these kind of topics in my blogs. So अभी तो 1900 ब्लॉग पोस्ट हो गए एंड मैंने देखा तो ऑलमोस्ट ऐसा था कि हर 2 दिन में एक ब्लॉग लिखा है पिछले 11 साल से. Wow. That's amazing. So that is helping me. Those initial days is helping me with this ratio. जब मैं 270 ब्लॉग लिखा करता था, अब तो मैं 70-80 लिखता हूँ. तो आई होप सो. अभी इस साल मैंने कमिट तो किया है खुद को कि एटलीस्ट 100 ब्लॉग लिखने हैं. लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट. I'm sure you will do it. तो यार मेरा भी सेम ही था, you know, the exact same journey. So it's so nice कि Yeah. हमारी journey काफी सेम थी. और something else I wanted to ask you was कि आपने बोला कि you used to write on different topics. तो मैंने तो since I started following you, I have seen your book reviews and your movie reviews. तो उसके अलावा और क्या क्या लिखते थे आप? Can you just tell us? तो इनिशियली जब मैंने चालू किया तो इट वाज मोर अबाउट माय रूटीन. Okay. तो पहले तो वो बहुत बेकार सा था बिकॉज अमिताभ बच्चन से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो चलो अमिताभ बच्चन का रूटीन तो सब जानना चाहते हैं, मैं अपना भी डालता रहता था. बट इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि यार ये तो बकवास हो रहा है. सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यूथ कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, हाउ वी शुड यूज अवर टाइम. बिकॉज मैं जैसे आपको बताया मैंने 11-12 काफी वेस्ट किया था. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दिस क्या बोल सकते हो इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू डूइंग गुड स्टफ्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करने लग गया था कि कॉलेज की पढ़ाई कितना देर करनी है, कॉलेज के काम कितना देर करने हैं, एंड देन बुक्स भी पढ़ना है, ब्लॉग भी लिखना है, एंड ये सारी चीज़ें करने लगा. इवेंचुअली एक समय आया जब मेरे को लगा कि थोड़ा मैं इतना रिलीजियस नहीं था, तो मुझे लगा थोड़ा तो जानना ज़रूरी है. एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग गीता. मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, तो मैं बहुत चीज़ें करता था. तो मुझे लगा, और वो करने के बाद एक पॉजिटिव चेंज काफ़ी समझ में आया अपनी डेली रूटीन में. कहते हैं कि आपका लाइफ डिफाइन होता है कि आप अपना हर एक दिन कैसे गुजारते हो. करेक्ट. तो हर एक दिन जब अच्छा होने लग गया तो और ऑटोमेटिकली हर एक साल मेरा पिछले साल से बेहतर होने लग गया. सो देन आई थॉट कि फिर मैं यही सारी चीज़ें अपने ब्लॉग्स पे लिखने लग गया, टाइम के बारे में, लोगों के बारे में, देन व्हाट गुड कैन यू डू फॉर योर फैमिली, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी डोंट. देन थोड़े इंडियन पेरेंट्स का अप्रोच भी काफ़ी कभी कभी कन्वेंशनल हो जाता है जो कि सही नहीं है. तो मैं वो भी लिखने लग गया कि पेरेंट्स जैसे हमें मालूम है एजुकेशन की तरफ कैसे पुश किया जाता है उस तरफ जहाँ इंटरेस्ट नहीं भी हो. तो फिर वो सब भी लिखने लग गया. देन दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू राइट इनिशियली. बट अब तो मेनली बुक्स के बारे में होता है या स्पिरिचुअलिटी के बारे में होता है, या अब थोड़ा बहुत मैं स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा लिखता हूँ और बाकी तो कुछ ऐसे टॉपिक ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया अभी. So Abhilash, about this spiritual journey, उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? Like how did it start और अब आप कहाँ पे हो? What do you practice daily? Okay, so what happened is eventually जब मैं बुक्स के बारे में लिखने लग गया तो कई पब्लिशर्स ने या कई ऑथर्स ने मेरे को अप्रोच करना चालू कर दिया कि वी वुड लाइक आवर बुक्स टू गेट कवर्ड ऑन योर ब्लॉग. तब इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था एंड बहुत कम ब्लॉगर्स थे. तो
मेरे पास बहुत सी स्पिरिचुअलिटी की किताब आने लगी, जैसे कि मैंने बताया 5-6 तो मुझे समझ में नहीं आई, पहले 10 समझ में नहीं आई, इवेंचुअली समझ में आने लग गई। एंड देन सदगुरु की एक किताब आई, और सदगुरु की किताब इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई थी और इतनी डेप्थ के साथ लिखी हुई थी कि मुझे लगा यार ये सब क्या बातें हो रही हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं तो कि ऐसा भी होता है कि तो वो आपके लाइट बल्ब मोमेंट थे क्या? That one? हाँ, तो मैंने बोला कि if only a brief cycle can make so much of change in your life, या so much change in your perspective, it can keep you calm or it can make you less angry, less frustrated. And मेरे को सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव उनके किताब से सीखने को मिला कि there are few things जो आपके कंट्रोल में होती है और few things जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो सपोज अगर मेरे को 11 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं 11:45 बजे पहुंच जाऊं या 11 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं। अब अगर ट्रेन नहीं आ रही है 11:30 तक, 11:45 तक, और मेरे को कोई 1 बजे कुछ अटेंड करना है, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। मैं देखता हूँ लोग ऐसे टाइम देखते हैं, भागते हैं स्टेशन में, इरिटेट हो रहे होते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैं भी ऐसे ही था कि क्या यार मैं इतना मैनेज करके आया और अभी सामने मैनेजमेंट इतना खराब है। बट देन दिस स्पिरिचुअलिटी थिंग गेव मी दैट कंट्रोल किया, ये कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में जो था वो मैंने कर लिया। अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेट्स नॉट गेट पिस्ड ऑफ बाय दैट, उसको अभी एक्सेप्ट करो कि इसके पीछे भी कुछ तो यूनिवर्स ने डिफाइन किया हुआ है कि आप शायद लेट हो रहे हो तो आपका अच्छा ही होगा उसमें। और तो वो पर्सपेक्टिव आया। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, और फिर मैंने 2018 में फाइनली सदगुरु में, वहां से मैंने इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम किया, 7 डेज का कोर्स होता है। एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट। एंड उनका मेन होता है सांभवी महामुद्रा बोलते हैं, जो 21 मिनट्स का प्रैक्टिस है, जो आपको एम्प्टी स्टमक करना होता है, 4.5 घंटे बिना खाए हुए या 2.5 घंटे कोई बेवरेज नहीं लिया होना चाहिए। तो बेसिकली या तो आप सुबह कर लो या व्हेनेवर यू फील लाइक। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत रेगुलरली नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग अप अर्ली। तो बाय द टाइम मैं उठता हूँ ऑलरेडी जब लॉकडाउन चालू हुआ था, दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल पीरियड। मैंने काफ़ी किया उस समय, 2-3 महीना रेगुलर किया। बट जैसे जैसे समय अभी गुजर गया या बीच में भी ऑफिस के टाइम पे उतना नहीं कर पाया, बट जब मौका मिलता है मैं करता हूँ। एंड आई एंश्योर कि मैं, जैसे कि हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं, राधानाथ स्वामी हो गए फ्रॉम इस्कॉन, गौर गोपाल दास फ्रॉम इस्कॉन, सदगुरु हो गए, बीके शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी, तो इन लोगों के रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। आप इनके वीडियोस देखो, ओनली बाय लिसनिंग देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट यू माइट फील इन योर पर्सपेक्टिव। अगर आप उसको जस्ट बाय थ्योरेटिकल प्रैक्टिस यू कैन अचीव सो मच। You can't imagine what happens when you start, experiencing it yourself. Yeah, correct. The kind of calmness you get. Yeah. So that is how the spiritual growth has happened through books. So books पढ़ने के कारण ही मैं इस तरफ मेरे को चीजें मालूम चली। शायद नहीं पढ़ता तो शायद मैं कभी विश्वास भी नहीं करता और कभी मानता भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारा अभी दिमाग में वो बच चुका है ना, ढोंगी बाबा और फर्जी बाबा और ये सब। तो अभी बहुत मुश्किल हो गया है इन सब चीजों की तरफ इंक्लाइंड होना लोगों का। बट ओवरऑल बुक्स के कारण ही थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो गया। नहीं, आई एम ग्लैड यू हैड दिस रियलाइजेशन, क्योंकि मैं भी अब स्पिरिचुअल में इतना, अभी तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द फील्ड, पर मैं बहुत फिलोसफी पढ़ती हूँ। एंड ऑल ऑफ फिलोसफी आल्सो कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपके इमोशन, आपका थिंकिंग, environment is not in your control. So that's amazing that you had that realization, क्योंकि वो it's very important to keep a calm mind. अब मेरे तो लाइफ में डॉग्स भी इतने हैं, I keep on interacting with them. So why you have to be calm. अगर आप ही चिल्लाने लगो तो वो कुत्ता आपके पीछे भागेगा ही, वो आप पे भौंकेगा। कितने डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास 2 डॉग्स है, टाइगर और सिम्बा। और मेरे बहुत सारे, हमारे एरिया में आई एम अ वेरी एक्टिव फीडर। मैं स्ट्रे डॉग्स को जाके फीड करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है डॉग्स के साथ रहना, और वो मुझे हेल्प करते टू बी काम, क्योंकि आई नो कि जब इतने सारे डॉग्स हैं मेरे अराउंड, आई हैव टू बी काम, क्योंकि वो हमारे इमोशंस रीड करते हैं। सो इट्स अमेजिंग यार, आई जस्ट लव दिस जर्नी। और उसमें हर यू शुडंट एवर बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, ऐसे मुझे लगता है। जैसे आपने बोला कि एक दिन नहीं हुआ, एक दिन मेडिटेशन नहीं हुआ, इट्स ओके, अगर यू कैन डू इट लेटर। सो दैट्स अमेजिंग यार। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लाइक नाउ वील start talking about it. I'll ask you for tips and everything. I'll also recommend you a few books on spirituality, so you will love reading them also. Yes, you please share them with me. Okay, अभी आपने बोला तो I have started reading Manoj Jain's book. अभी तो बस एक चैप्टर पढ़ा है, the one which I won from your giveaway. हाँ, meeting, yeah.
That's a good one. अभी बस शुरू किया है. Let's see now how it goes. Okay. तो Yeah. so अभिलाष, I want to know कि आप बुक्स पढ़ते हो, आप मूवीज देखते हो, उनके बारे में लिखते हो, आप IT फर्म में काम भी करते हो. So how do you manage everything? आपका डेली रूटीन क्या है? तो ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं मेरे पर्सनल लाइफ में भी कि हाउ डू यू मैनेज टू रीड सो मेनी बुक्स अलोंग विद जॉब, क्योंकि IT का जॉब 9 to 6 नहीं है, इट इज ओनली ऑन पेपर्स. तो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू रियलाइज कि 9-10 बजे तक रुक रहे हो, कभी सैटरडेज को भी बुला लिया जाता है. सो इट इज नॉट दैट इजी. तो देखो अब क्या है, बिकॉज आई स्टे इन मुंबई एंड आई ट्रेवल बाई लोकल, सो आई ऑलवेज हैव 1 hour while reaching to the office and 1 hour while coming back to home. एंड बीच में तो इतना नशा हो गया था कि माई ऑफिस इज 20 minutes अवे फ्रॉम स्टेशन, सो आई यूज्ड टू वॉक, और मैं चलते चलते मैं बुक्स पढ़ने लग गया था. बट देन आई रियलाइज कि मैं गाने में हाँ दैट इज नॉट सेफ. मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने गाने सुनने तो बंद ही हो गए, गाने सुनने का कोई टाइम ही नहीं बचा, तो वो मैंने बंद किया. तो अब नाउ बिकॉज आई रीड सो मच, मेरी रीडिंग स्पीड भी थोड़ी पहले से बेटर है, तो अब आप समझ लो अराउंड 2 minutes में एक पेज हो जाता होगा एक बुक का. तो फ्रॉम दैट स्पीड अगर आप पकड़ो, मेरा 45 minutes की जर्नी वन साइड एंड 45 minutes, तो 90 minutes में मेरी अराउंड 60 पेज हो जाता है, 60 पेजेस एक दिन में. जब ऑफिस चल रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में तो काफी टफ हो गया. मुझे लगा था इजी होगा, बट इट इज टफ बिकॉज अभी अब आपका कोई लॉग ऑफ टाइम नहीं है, यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, और आपको कभी भी पिंग आ सकता है. सो नाउ इट इज नॉट वेरी इजी टू रीड दैट मच. बट उस टाइम पे मेरे ट्रेन का टाइम, मैं किसी फ्रेंड्स के साथ बात करने के साथ ये सब नहीं करता था बिल्कुल भी. सिर्फ मैं बुक्स पढ़ते हुए आता था, अपने बुक्स में घुसा रहता था. तो 60 पेजेस करके, और अगर आप पकड़ लो एक बुक 250 पेज की होती होगी, 250 पेजेस की, तो 4-5 दिन में एक बुक हो जाती है. एंड दैट इज व्हाट यूज्ड टू बी माय टारगेट, 52 बुक्स इन 52 वीक्स थ्रू आउट द ईयर. सो एक ये मेरे रूटीन में है. देन मैं थोड़ा गीता उतना, वो भी मैं बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, बट एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं थर्सडेज को तो पढ़ ही लूँ, या एकादशी के दिन तो मैं 20 पेजेस पढ़ ही लूँ, बिकॉज दोस आर द डेज व्हेन आई ट्राई टू बी लिटिल मोर रिलीजियस देन आई एम. सो उन दिनों में मेरा गीता हो जाता है. देन न्यूज़पेपर में पूरा नहीं भी पढ़ पाया, तो एटलीस्ट आई गो थ्रू दी हेडलाइंस, दैट आई डू रेगुलरली. कोशिश करता हूँ मेडिटेशन हो जाए, नहीं जनरली नहीं हो पाता, बट आई ट्राई टू डू इट जब भी मेरे को मौका मिले. अभी तक एक्सरसाइज नहीं था रूटीन में, बट few of the recent medical reports have not been very good, so अब मैं एक्सरसाइज और वॉकिंग के लिए भी 1 घंटा निकाला है. so then that has also begun. yeah, so मैं सोता कम हूँ, मतलब मैं 1-2 बजे रात को सोता हूँ, and I get up at 7, so I only sleep for 4 to 5 hours, maximum 6 hours, not more than that. आजकल ज़्यादा सो रहा हूँ in lockdown, but during the office days I only sleep for 4 to 5 hours, so that helps me manage. That's amazing. और उसके ऊपर आप वीडियोस भी बनाते हो, so that उसके बारे में actually I wanted to tell you कि आपके जो बुक रिव्यू की वीडियोस होते हैं, I really like them. I get so inspired, क्योंकि यार मुझे तो राइटिंग में भी कभी अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, and the way you do it in videos it's amazing. तो आप आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार इसका मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में पोस्ट लिखूंगा? हाउ डू यू डिसाइड दैट? तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी एज वी नो कि टिकटॉक जैसे एंटरटेनमेंट वेबसाइट जो आ गए, जिसके कारण 15 सेकंड्स का ही अब अटेंशन स्पैन हो गया. अब आप 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ का रिव्यू लिखोगे बुक पर, तो उसको कोई पढ़ना नहीं पसंद करता है. सो 4-5 साल पहले से ही मेरे दिमाग में आ गया था, व्हेन नॉट वीडियो ब्लॉगिंग और बुक्स पे इतना इंडिया में नहीं था, फॉरेन में तो था, इंडिया में नहीं था ज्यादा. तो 4-5 साल पहले मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करता हूँ, बट देन आई एक्चुअली स्टार्टेड एन ईयर बैक. तो फिर ये हुआ कि चलो मैं बुक्स ही सबसे अच्छा जानता हूँ, तो बुक्स के बारे में बोलना चालू करते हैं. एटलीस्ट 7-8 मिनट्स की वीडियो रहेगा, तो उसको तो शायद से लोग सुन भी लें, अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं इतना लंबा चौड़ा. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड वीडियो. सो मैं सच बताऊँ तो आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ. बट वहाँ में यही था कि मेरे को क्योंकि और मेरे पास एडिटिंग स्किल्स नहीं है, जीरो, वो मेरी एकदम जीरो एडिटिंग. कोशिश ये थी तो कोशिश ये थी कि 1 गो में कुछ ऐसा हो कि
मेरा वो पूरा वीडियो खत्म हो जाए, ज्यादा एडिट ना करना पड़े। या सो फिर वहां से चालू हुआ। तो अब फिलहाल में अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आप एडिटिंग नहीं पाओगे ज्यादा। इट इज इन वन गो, व्हाटएवर आई डू इट इज इन वन गो इटसेल्फ। या सेम हियर, मुझे तो कुछ ज्यादा आता नहीं, सो आई मेक श्योर कि मेरे छोटे वीडियोस है, एक ही इसमें है, एंड दैट्स इट। हाँ यार, और मेरे तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, 8-10 मिनट के हो जाते हैं, फिर जब मैं बोलना चालू रियलाइज नहीं करता हूँ कि अब ज्यादा हो रहा है। बिकॉज वो मेरे को और नर्वस करने लगता है। तो आई थिंक कि चलो बोल देते हैं। अभी मेरे और भी कई चीज, बहुत आइडियाज और है टू डू विद द वीडियोस, पर आई एम नॉट एबल टू डिवोट मच टाइम। मैंने लास्ट ईयर कुछ आई थिंक 15 वीडियोस बनाए थे, सो विच इज नॉट अ वेरी गुड नंबर। एक महीने में एक ही हो पाया। आइडिया है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक तो आना चाहिए, बट वो कब मैं, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है ना। आपको मुंबई के घर तो पता ही है कितने बड़े होते हैं। तो स्पेस, जब आवाज ना हो रही हो और सब साइलेंट हो, एक्टिंग भी अच्छी हो, यहाँ पीछे कपड़े भी ना फैले हो, तो then is when you can record a video. So अभी वो थोड़ा अच्छा ही नहीं चल रहा है, but I hope so कि eventually this year, अगले साल से हर हफ्ते एक वीडियो आए। Yeah, that's amazing. और आपका काम बहुत ब्रिलियंट है यार, क्योंकि मैं I have done my MA in French literature, तो हमें कभी ये स्पीकिंग में प्रेजेंटेशंस होते थे, so we had to pick a book and you had to analyze it in speaking. तो मेरी तो हमेशा पढ़ती थी, and the way you do it, I find it's amazing. आपके सारे thoughts organized होते हैं and you say it perfectly well. आप कैमरा में भी देखते हो, so that's brilliant. I hope you put out more videos. Yeah. तो so what do you prefer more? आपको वीडियोस ज्यादा, वीडियोस में बात करना ज्यादा पसंद है, or you prefer to write a review? No, I prefer to write a review always. मैं अभी भी आप देखोगे तो पहले मैं अपना रिटर्न रिव्यू पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं सोचता हूँ अब मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेंड द नेगेटिव वाइब्स। तो मैं कभी भी उस बुक का वीडियो नहीं बनाता हूँ जो मुझे ज्यादा पसंद ना आई हो। जो बहुत पसंद आया तो उसी का ही वीडियो बनाता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी ऑथर ने जिसने इतना मेहनत किया है, मैं एक 4-5 मिनट का वीडियो बना दूँ और उसकी बुक के बारे में ऐसा कुछ कर दूँ कि बिल्कुल ही ना पढ़ा जाए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड एनर्जी और टाइम जितना स्पेंड होता है बुक लिखने में। अब मैंने जितने ब्लॉग लिखे हैं, अगर उस ब्लॉग को अगर आप बुक्स फॉर्म में डालो तो मेरे को लगता है 12-15 नॉवेल्स हो सकते हैं, उतना ही मैंने लिखा है। सो आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट वन मेक्स व्हेन वन राइट्स। उन लोगों ने तो एक फ्लो में पूरी कहानी लिखी हुई है, मैं तो फिर भी हर पोस्ट मेरा अलग है। उन लोगों ने तो एक कहानी लिखी जो एक लंबे फ्लो में चल रही है, तो मैं वो वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो अभी भी मैं लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं वीडियो इतना प्रेफर नहीं करता, बट आज की डिमांड है वीडियो, हर कोई यूट्यूब की सर्व कर रहा होता है, फेसबुक वॉच ही सर्व कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाई अब करना पड़ रहा है, बिकॉज टाइम से चेंज अब नहीं करेंगे तो पीपल विल फॉलो। और मैं चाहता हूँ कि पीपल इन्फ्लुएंस हो रीडिंग की तरफ और बुक्स उठाएं और पढ़े। अभी न्यू ईयर आया तो मेरे कई फ्रेंड्स का और जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं ऑनलाइन, उनका आया कि सीइंग यू वी हैव स्टार्टेड रीडिंग, और मेरा टारगेट 12 बुक्स का है या मेरा टारगेट 6 बुक्स का है। सो आई फील वेरी गुड। अगर इसने भी पढ़ना चालू कर दिया, सो इट ब्रिंग्स अ वेरी मच डिफरेंस टू ऑल द पीपल लिविंग अराउंड देम। करेक्ट। एंड यू नेवर नो एक्चुअली कि हम क्या हमारा काम करते हैं, यू नो, मे बी बिकॉज वी लाइक टू डू इट और वी हैव टू डू इट, बट यू आर एक्चुअली इंस्पायरिंग मेनी पीपल। हमको शायद पता नहीं चलता, बट people do get inspired, so that's great. Yeah, तो यार हमारी जर्नी तो सेम रही है, you know, from those blogging days to micro blogging, फिर Instagramming. So tell me about that journey. आपको कौन सा, which phase did you like the most? कुछ मिस करते हो आप ब्लॉगिंग डेज के? मैं मिस तो कुछ नहीं करता, बिकॉज जो मैं पहले करता था वो अभी भी करता हूँ। मैं ब्लॉग तो लिखता ही हूँ, मैंने ब्लॉग छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट देखोगे तो हर पोस्ट के नीचे लिखा हुआ रहता है कि to read the complete post go to my blog. So मैं लिखता वही हूँ। इंस्टाग्राम उससे होता नहीं, frankly speaking, क्योंकि I don't know how much gender specific this habit of reading is, but मैंने देखा है ज्यादातर लड़कियां ही इंस्टाग्राम में, बुकस्टाग्राम वाले कम्युनिटी में हैं, लड़के बहुत कम है। क्योंकि हम लोगों से फोटोग्राफी कैसे सजाना है अपने, लड़कियां बहुत अच्छा कर लेती हैं, फूल वूल एक्सेसरीज रख के क्या क्या। अब लड़कों के पास तो एक्सेसरीज होते नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो जब लगा कि यार, सो व्हेन ऑथर स्टार्टेड आस्किंग मी कि आपने मेरा रिव्यू इंस्टाग्राम पे नहीं किया, आई वांट टू शेयर इट विद माय फॉलोअर्स।
तो आई थॉट यार इंस्टाग्राम पे कैसे करें, तो पहले तो मैं हाथ में पकड़ के ऐसे फोटो खींच के डालने लग गया, बट देन बाकी को देखा, मैंने कहा शिट इतनी मेहनत होती है, इतना कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं रिसेंटली मैंने चालू किया है, बट दैट इज नॉट आल्सो विद लॉट्स ऑफ प्लानिंग, बस चालू कर दिया है। आई होप सो मेरा भी थोड़ा फोटोग्राफी स्किल और सब भी थोड़ा अच्छा हो जाए, तो आगे दैट इज, क्योंकि इन सब के लिए ना बहुत स्किल लगता है, नॉट ओनली अबाउट रीडिंग नाउ, इट इज आल्सो इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑनलाइन अबाउट योर रीडिंग जर्नी, इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर पीपल, आपको फोटो खींचना भी आना चाहिए, आपको स्टोरीज भी बनाना चाहिए, आपको रील्स बनाना भी आना चाहिए, आपको वीडियो भी बनाना आना चाहिए। अभी इतना कुछ हो गया, उनको एडिट भी करना आना चाहिए, तो उतना इतना तो टैलेंटेड नहीं है अभी, इतने स्किलफुल तो नहीं है। तो रिलेटिव आई स्टिल लव ब्लॉगिंग, और जिनको ब्लॉगिंग कई लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी ईमेल में चला जाता है रोज सुबह जो भी ब्लॉग में आज लिखता हूँ, तो डेट इज अ बेटर वे आई फील, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब अभी मुझसे उतना मतलब होता नहीं है, कनेक्टेड नहीं हूँ, बट आई डू इट जस्ट बिकॉज टाइम डिमांड्स और पीपल डिमांड्स के लिए। या एग्जैक्टली, तो वो अमेजिंग है ना कि आपने विद टाइम इवन यू चेंज्ड योर मेथड्स, बट योर ब्लॉग इज स्टिल देयर, वहां पे भी आप पोस्ट करते हो। तो आप डेली ब्लॉग करते हो या देयर इज सम शेड्यूल टू दैट? नहीं, कुछ शेड्यूल फॉलो नहीं करता हूँ, बेसिकली जिस दिन दिमाग में कुछ आया एंड इफ आई हैव टाइम, तो जस्ट मैंने उठाया उसको लिख दिया, एंड आई एंश्योर, अब मैं इंश्योर करता हूँ 4-5 पैराग्राफ से ज्यादा ना हो। पहले तो मैं लिखता ही जाता था 8-9-10 पैराग्राफ भी डाल देता था। उस समय लोगों के पास इतना एंटरटेनमेंट भी नहीं था, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, यूट्यूब पे लोग इतना ज्यादा लोग नहीं थे यूट्यूब पे देखने के लिए, लोग ज्यादा गाने ही देखते थे और मूवी के ट्रेलर ही देखते थे। तो ब्लॉगर्स और क्या क्या नहीं हो गया, अब तो पूरा यूट्यूबर्स हो गए। अब लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो आपको कंटेंट अगर लोगों को फॉलो करना है तो एटलीस्ट कम करना पड़ेगा अपने कंटेंट को। तो अब मैं 4-5 पैराग्राफ में बंद कर देता हूँ। पहले लोग पढ़ते भी थे 10-10 पैराग्राफ, उनको अच्छा लगता था, यार चलो कुछ तो तू करता है जिसके कारण हमारे पास भी कुछ चीजें जो हम पढ़ लेते हैं। बट अब लोगों के पास ऑलरेडी इतना कुछ है मोबाइल पे करने के लिए, सो अब मैं उसको थोड़ा ब्लॉग को छोटा कर दिया मैंने। अच्छा, तो अभिलाष, ये जो आपने बोला कि जो भी मन में आता है आप लिख देते हो ब्लॉग पे, जर्नलिंग इज एग्जैक्टली द सेम। जो भी मन में आ जाए आप लिख दो, तो आपका ब्लॉग इट्स लाइक अ जर्नल ओनली फॉर यू। That's the only advice I can give you, क्योंकि आप पूछते रहते हो ना जर्नलिंग के बारे में। तो मैं भी इस साल मैंने फाइनली जर्नल खरीदा, आप सबको देख के मैंने कहा चलो मैं भी कुछ करता हूँ, तो ये मैंने खरीदा 2021। ये मेरे लाइफ का पहला जर्नल है। इसके पहले मैं डायरीज लिखता था, तो डायरी इनिशियली तो जब टीनेज था तो मैं सब कुछ लिख देता था जो नहीं भी लिखना चाहिए, तो ऐसा था कि आके फेंकना पड़ जाए, वो फेंकता था। एंड देन फिर मैंने बोला यार ये सही नहीं है, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ माय डायरीज का नेगेटिव वाइब्स आया, मैंने कहा शिट ये ऐसा सब नहीं लिखना चाहिए। देन आई ओनली स्टार्टेड यू कैन से डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ, कि यार अब अपनी लाइफ है कम से कम अपने लिए तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सो मैंने कब पहली बार क्या किया, मैंने कब क्या किया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव आई एम डूइंग। बड़ी बात नहीं है, लोग हर रोज करते रहते हैं, बट मैं लिख लेता हूँ। जैसे 10 जनवरी 2021 आई डिड द फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव एंड इट वाज विद सारिका, और तो मैं लिख देता हूँ। तब ताकि अब मैं जब जाता तो वो सब सिर्फ ऐसी पॉजिटिव चीजें लिखी होती है उसमें। तो अब मैंने वो करना चालू किया, बट स्टिल एक जो डेली जर्नल होता है ना, जहाँ डेली मेंटेन करते हो कि ये कितना लीटर पानी पिया, आज आपका वेट किया था, एंड देन डिड यू फॉलो दिस ऑफ योर हैबिट्स। सो सपोज इफ आई जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ 6 चीजें और ये हैबिट ट्रैकर है, मैं यहाँ रोज टिक लगाता हूँ। सो इट इज रनिंग, जर्नलिंग, गीता पढ़ा कि नहीं, रीडिंग किया कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं, मेडिटेशन किया कि नहीं। अभी आप देखो मेडिटेशन का एक भी ब्लॉग भरा नहीं है, सब खाली है इस साल। तो दिस इज समथिंग आई गॉट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को डेली जर्नलिंग करनी थी। तो अब वो भी आ गया। अब लेट्स सी मैं कितना सब कुछ फॉलो करना है, वो डायरी भी मेंटेन करनी है, डेली जर्नल भी मेंटेन करना है, ब्लॉग भी लिखना है, तो लेट्स सी कितना हो पाता है। पर आपका तो प्रॉपर जर्नल है ना, तो उसमें चीजें दी गई होगी, व्हाट यू हैव टू राइट एंड एवरीथिंग, सो दैट नॉट मच स्पेस, दैट शुड बी इजी। मेरी तो यहाँ पे नोटबुक है, आई विल शो यू। बस नोटबुक में लिख देती हूँ मैं, एक ऐसे पेज ओपन करती हूँ एंड आई ट्राई टू फिनिश द एंटायर पेज। जो कुछ भी मन में आता है लिख देती हूँ सुबह, वो मेरा एक सुबह का एक्सरसाइज होता है। So yeah. नहीं तो समझो मन में आता है। So for example, if you are not very much happy with your parents, suppose, or your anyone around you, your siblings, so do you write also that कि आज इसने ये किया? No. That I don't write. So then what do you write? तो मेरे कैसा होता है, मेरा भी एक मॉर्निंग शेड्यूल है। मैं सुबह उठ के बहुत जल्दी उठती हूँ, मैं 5:30 बजे उठती हूँ।
फिर अरे आई वाह। मेडिटेट या आई टेक माई डॉग्स आउट फॉर अ वॉक, फिर मैं सारे डॉग्स के साथ फीडिंग पे जाती हूँ वगैरह। तो मैं उसके बारे में लिखती हूँ कि शायद कुछ वहां पे गलत हो गया, सो हाउ आई कैन इम्प्रूव। और फिर मैं अपना जो हाँ। टोन रहता है, एक जो माइंड का वो टोन रहता है, आई सेट दैट फॉर द डे कि आज मुझे क्या क्या ओके। करना है, और मैं वो करने के लिए हाउ आई हैव टू बी दैट आई शुड बी काम, आई शुड नॉट पैनिक। अब कैसे जस्ट या लास्ट वीक हमारे आई एम अ टीचर, सो हमारे हाँ एग्जाम्स हाँ थे, और एग्जाम के टाइम ऐसे बहुत तूफान होता है दिमाग में। सो आई यूज्ड टू ट्राई टू हाँ। काम माई सेल्फ डाउन कि यार डोंट पैनिक, स्टूडेंट्स पे गुस्सा मत करना, कुछ हुआ तो ट्राई टू हेल्प देम इन अ काम वे। ऐसे कुछ तो लिखते रहती हूँ मैं अबाउट द डे, नथिंग वेरी फैंसी, बस अच्छा। डेली चीजों के बारे में। या और अगर सो यू टीच, ऑन द तो डेज, आप इसको या एकदम एकदम बच्चों को पढ़ाते हो या कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाते हो? मैं सो आई टीच एट द यूनिवर्सिटी, और जहाँ वहाँ पे अडल्ट्स होते हैं, सो एनीवन अबव 16 कम्स देयर टू लर्न फ्रेंच। हाँ, बहुत मजा आता है, बहुत डिफरेंट क्राउड होता है। वी हैव पीपल अबव 60, आई मीन सॉरी 16 to 60, बहुत सारे लोग होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। या सो बहुत मजा आता है कुछ उनको एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में। इट्स फन। नाइस नाइस। सो यू टीच फ्रेंच ओनली? या आई ओनली टीच फ्रेंच। अच्छा, या चलो हम भी सीख लेंगे कभी जरूरत पड़ी तो। या ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू टीच यू। और आई आल्सो वांटेड टू टेल यू कि जिस दिन मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं होता, एक ब्लैंक पेज पे मैं स्टेयर करते रहती हूँ 2 मिनट 4 मिनट, फिर अच्छा। ऑनलाइन में जाती हूँ कुछ इंस्पिरेशन के लिए। पिंटरेस्ट पे बहुत होता है, अगर आप लिखो जर्नल राइटिंग प्रॉम्प्ट्स तो बहुत कुछ आ जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन देते हैं, वो आपको लिस्ट देते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से कुछ बनाती हूँ। और आई मेक अ लिस्ट फॉर ब्लॉगिंग, अब मुझे कौन से बुक्स पढ़ने हैं, उनके बारे में पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, सो आई डू समथिंग और द अदर, आई डू ऐसे। चलो अच्छा है, कुछ तो आइडिया। या यू कैन आस्क मी फॉर आइडियाज, आई विल गिव यू। अब तो नहीं, अभी तो आपने दिया नहीं, यू सेड, अभी तो आपने बोला नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फाइनली आज वीडियो पे आपने बताया। नहीं, आई शेयर द प्रॉम्प्ट्स विद यू फॉर श्योर, आप मुझे रिमाइंड करना। हाँ, पक्का पक्का यार। यस, तो यस अभिलाष, आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो आप रीडर्स के लिए कौन सी बुक्स रेकमेंड करोगे, स्पेशली यंग रीडर्स? क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं पेज। एनी बुक्स यू वुड रेकमेंड? तो अगर अभी क्या है, बहुत अलग अलग चीज हो गया, तो अगर फिक्शन में मैं बोलूँ आपको, तो दिस इज फॉर दी एज, कोई भी जो आई थिंक सो आजकल के बच्चे तो ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, तो 12-13 साल के ऊपर कोई भी पढ़ सकता है। तो सियालकोट सागा बाई अश्विनी संघी, तो ये 2 फ्रेंड्स की कहानी है जो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में आए और फिर उनके बीच में कंपटीशन चलने लगता है कौन ज्यादा अमीर आदमी बनेगा। तो डेट इज अ वेरी वंडरफुल बुक, बहुत बहुत मजा आता है, एकदम एड्रेनलिन रश वाली कहानी है उसके अंदर। फिर एक मैंने पढ़ी थी लूजिंग माई रिलीजन बाई विश्वास मुदगल, वो भी बहुत अच्छी किताब है, 3 दोस्तों के बारे में एंड हाउ, वो थोड़ी डेप्थ वाली कहानी है, तो मे बी हर किसी को पसंद आए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कैरेक्टर बेस्ड कहानी, हाँ, वो थोड़ी इस टाइप की है। देन रिसेंटली अमित त्रिपाठी की किताब आई थी लेजेंड ऑफ सुहेल देव, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंस्पिरेशनल बुक, कि कैसे आज से 1000 साल पहले भी हमारे देश में एक बंदा खड़ा होकर, राजा सुहेल देव, और उन्होंने हमारे देश को इन्वेजन होने से बचाया, और उनके कारण 160 साल तक हमारे देश में इन्वेजन नहीं हो पाया। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। फिर अमित त्रिपाठी की रावण अगर आप पढ़ोगे ना, तो हाउ टू कैसे एक उन्होंने रामायण को अपने तरीके से बदला है और रावण को किस तरीके से उन्होंने दिखाया है, वो बुक भी पढ़ोगे तो काफी इंस्पायर हो जाओगे। तो ये तो कुछ फिक्शन किताबें होगी जो रिसेंटली पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक एकदम बच्चों की बात बोलो, एकदम बच्चों तो नहीं बोल सकता, बट वही 12-13 ईयर्स ओल्ड के ऊपर, तो प्रीति शेनॉय की जो किताब है 100 लिटिल फ्लेम्स, तो ये ग्रैंड फादर और एक ग्रैंडसन की कहानी, उनके बीच के रिलेशनशिप की, और आपको दोनों पर्सपेक्टिव समझ में आता है, उस जनरेशन का और इस जनरेशन का। तो इस लड़की को अपने दादा का कोई डायरी मिल जाता है, वो डायरी पढ़ रहा होता है, तो उनको उनकी लव स्टोरीज, उनके साथ क्या क्या हुआ और उनके कब बच्चे हुए और बच्चों का व्यवहार के सारा वो सब उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है। तो वो एक किताब बहुत अच्छी है। नॉन फिक्शन में आपको बोलूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, हु विल फ्लाई व्हेन यू डाई, ये किताब बहुत ही छोटी किताब है, 100 चैप्टर है, हर एक चैप्टर 1 पेज का है। तो उसमें सारी वो चीजें बताई गई हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, मतलब क्या कह सकते हो, आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, फालतू चीजों को हटा सकते हो,
बहुत फिल्टर्ड लाइफ जी सकते हो जो आपको सिर्फ मोटिवेट करें। फिर रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ये भी फिक्शन तरीके से लिखी हुई है बट इट इज मोर ऑफ अ नॉन फिक्शन थिंग, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि वेंट टू हिमालयास तो क्या क्या उनको वहाँ के गुरुओं ने सिखाया, जिसको अडॉप्ट करने के बाद अ पर्सन हु वाज 40 who started looking like 80 years old ended up looking like a 25 years old boy by following those practices. Okay. The Monk Who Sold His Ferrari is also very very good book. बाद में अभी रिसेंटली रॉबिन शर्मा की किताब आई थी 2 साल पहले, द 5 AM क्लब, वो मैं फॉलो नहीं पाया, so, मैं 5 बजे कभी उठ नहीं पाया, पर the kind of theories and formulas that are mentioned in that book is also very very inspiring. तो वो बुक मैंने एक बार पढ़ी, बट क्योंकि मैं उस समय नोट्स नहीं बनाता था, पढ़ते पढ़ते बस पढ़ लेता था बुक एक स्टोरी के, बट अब मैं उसको वापस पढ़ने जा रहा हूँ इस साल, बिकॉज वन ऑफ द रेजोल्यूशन इस साल का ऐसा है कि एटलीस्ट ये रूटीन में आ जाओ, फिर बाय 2022 आई वुड बी समवन हु कैन कॉल हिमसेल्फ अर्ली राइजर। तो देखते हैं कब तक वहां तक पहुंचते हैं। इफ यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल, अगर आप एक लेवल तो पार कर चुके हो, नॉट एट योर स्टेज बिकॉज अभी तो जैसे आपने चालू करा है, बट समवन हु हैज बीन रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स और जिनकी 10-12 किताबें हो गई हैं, जिनको थोड़ा समझ में आने लग गया है। तो सदगुरु की रिसेंटली बुक आई थी डेथ, सो हम लोग को लगता है डेथ हैपेंस जस्ट इन अ मोमेंट एंड एवरीथिंग जस्ट फिनिशेस ऑफ, एंड ही एक्सप्लेन्स हाउ अ ह्यूमन बॉडी इज स्टिल एक्टिव इवन आफ्टर 75 आवर्स, एंड हाउ इस तरीके से फूल और पूरी एनर्जी जब खत्म होती है सो इट टेक्स अराउंड 12 to 13 days, जिसके कारण हमारे हिंदूज में रिचुअल भी होता है कि हम लोग तेज भी मनाते हैं, राइट? तो 13 पूजा होती है। सो इस बुक के अंदर आपको ऐसे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे कि आप थोड़ा मतलब उसको ग्रैस्प करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उसका रिव्यू का वीडियो भी बनाया था, बट आप वीडियो में भी मेरा शक्ल देखोगे तो मैं काफी आपको उसमें हिला हुआ अपसेट सा दिखूंगा। मैंने बोला, इसमें मैंने नीचे फिर डिस्क्लेमर में डाला भी कि आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ द कंटेंट आई हैड रेड इन दिस बुक। 350 पेज की बुक है, लेकिन बहुत 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 डीप बुक है वो। अभी मत पढ़ो या कोई भी, ओनली व्हेन यू दैट यू हैव स्पेशली ग्रोन अप टू अ लेवल। मे बी शायद मैं भी नहीं ग्रो हुआ था, इसके लिए मेरे को इतना मुश्किल हुआ, हो जाते तो मे बी आई कुड यू नो अडैप्टेड दोस थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। बाकी इसके अलावा आई वुड से अगर आपको क्राइम्स पढ़ने में मजा आता है तो ऐसे तो बहुत फिक्शन क्राइम बनते हैं, क्राइम थ्रिलर लोग लिखते हैं, बट एक्चुअली अगर आपको रियल क्राइम, रियल गैंगस्टर, तो हुसैन जैदी की आप कोई भी किताब उठा लो, और मैं आपको बताऊं आप डोगरी टू डुबई से चालू करना, इतने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और हाजी मस्तान की कहानी, दाऊद इब्राहिम की कहानी, अबू सलीम की कहानी, छोटा राजन की कहानी, सबकी कहानी इतने अच्छी तरीके से लिखी हुई है कि आप पढ़ोगे आपको लगेगा आप उनके बीच में बैठ के आप वो सारी चीजें इन गैंगस्टर्स वाली को आप फील कर रहे हो, आप वहाँ ही हो एक्चुअली। So these are the few books that I would recommend. That's amazing. Thank you so much. अगर किसी को कोई doubts है तो I'll ask them to connect with you. आप उनको और recommendation दे सकते हो। तो अभिलाष, now आपके 11 years हो गए हैं blogging में. So where do you see writing Buddha in the coming years? आपके क्या goals हैं? Not much goal. इतना ही goal है फिलहाल कि at least हर साल 100 blog post आते रहे, इससे कम ना हो, बिकॉज पिछले 2-3 साल में मैं ये टारगेट अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा हूँ चाहते हुए भी। सो बट ये साल मैंने थोड़ा किया है कि नहीं, इस साल से 100 ब्लॉग आने चाहिए, बिकॉज मैंने अपना 1900 ब्लॉग पोस्ट 31 दिसंबर को लिखा है। सो इफ आई हैव टू राइट 100 ब्लॉग दिस ईयर तो मेरा 2000 ब्लॉग पोस्ट इस साल आना चाहिए। तो वो मेरा टारगेट है, वन ऑफ द रेजोल्यूशंस टू राइट माय 2000 ब्लॉग पोस्ट इन 2021। तो ये है, आई होप सो कि मैं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे कनेक्ट करूँ। किस तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ 3-4 मिनट के, जहाँ पे मैं थोड़ी रिलीजियस बातें भी बता सकूँ, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी बताऊँ। ये सब मेरा थोड़ा इस समय गोल है, नॉट ओनली वीडियो अबाउट बुक्स बट ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और जो अभी क्योंकि मैं जब लॉकडाउन चालू हुआ सो देन आई यू नो गॉट लिटिल मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय रिलीजन। आई थॉट कि ये भी पढ़ना चाहिए, इतना लोग फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग भी होते हैं, तो इतने एक्सट्रीमिस्ट भी क्यों हो जाते हैं? तो जरूर कुछ चीज तो है हमारे रिलीजियस में जो सही है, या जो एक्चुअली सही है हम समझ ना पाए हमारी प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश रहती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ गीता मेरे स्टडी टेबल पे हमेशा रहती है इसमें। सो हमेशा मेरे सामने रहती है, जब मेरे को लगता है कि मेरे को उठा के पढ़नी चाहिए तो मैं उसको तुरंत उठाता हूँ, पढ़ता हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, आई डोंट नो अगर आपने अभी तक गीता कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट
Okay, so in your morning routine that you say when you wake up at 5:30 a.m. So after your meditation, when you are done with your meditation, the first thing if you do, आप गीता का कोई भी पेज उठा लो, okay? Not कि आप पहले ही पढ़ो ऐसा सीरीज, आप कोई भी उसका पेज उठा लो और आप सिर्फ वो पेज पढ़ो. एंड मैं आपको बताऊं, आपका इतना दिमाग ग्रो हो जाता है, आपको लगता है शिट ये सब तो सोचते ही नहीं है. और हर पेज पे जो भी लॉर्ड कृष्णा ने उस समय एडवाइस दी अर्जुन को, या जो भी उनके पास जो उन्होंने सरपास किया हम ह्यूमंस को, वो काफी अच्छा है. और अभी तो अगर आपने रामायण देखी हो जो लॉकडाउन के टाइम पे आई हो, तो समय पे श्री राम भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उनके मुंह से निकल गया भगवान होते हुए भी कि मनुष्य का जीवन इतना कष्टदायी क्यों है. एंड देन लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेड इन व्हाइल इन द गीता इटसेल्फ, तो अर्जुन ने उससे पूछा कि अगर मेडिटेशन करना ही सब कुछ है, सो हम लोग ये लड़वड़ क्यों रहे हैं, व्हाई नॉट लीव एवरीथिंग एंड गो देयर. So he said that is the problem that has happened, जो 5-6 साल पहले हुई, that all the good people went to the mountain. और इसके लिए अधार्मिक लोगों ने राज करना चालू कर दिया. And that is why he says it is very difficult for a person to live a life also and also be spiritual at the same time. Yeah. तो अब मैं थोड़ा रिलीजन की तरफ गया हूँ, तो मेरे को ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स पता चले जिन्होंने मेरे को काफी चेंज किया और काफी काम भी किया और स्पिरिचुअल एनर्जीज और रिलीजियस एनर्जीज भी लेके आया. तो मैं चाहता हूँ 3-4 मिनट के वैसे भी यूट्यूब वीडियोस बना के मैं डालूं, जिसके अंदर इस तरीके से पता चले, जो एकदम से एक तरीके का आई ओपनर हो लोगों के लिए कि ये तो कभी सोचा ही नहीं. या नहीं, एक्चुअली वो सच है, क्योंकि आपका जो व्हाट वाज लक्ष्मी मूवी का रिव्यू, वो वीडियो देख के मैंने भी सोचा कि यार मैंने आई शुड रियली गिव दिस अ थॉट, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा उस वक्त ऐसे बैकग्राउंड रीडिंग के लिए. सो आई थिंक यू शुड टोटली डू इट, और प्लीज शेयर करना सबके साथ. इट विल बी अमेजिंग. तो वही टारगेट है 2021 का कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिलीजन को पढूं और जो मैं आपसे अच्छी बातें सीखूं वो मैं शेयर भी करूं फ्रॉम दिस सोशल मीडिया अकाउंट्स. या दैट्स ग्रेट. तो आपने कभी बुक लिखने का सोचा है? सो आई टोल्ड यू इनिशियली वही सोचा था, फिर लगा कोई इतना बड़ा सपना तो नहीं हो गया. देन इज व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स. अब वो थॉट आज भी है कि बुक एक फिक्शन किताब लिखनी है, पर वेल उसके लिए बुक्स पढ़ना चालू किया कि चलो और सीखते हैं. लेकिन अब मैं अराउंड 800 किताब लिख चुका हूँ, और हर किताब पढ़ने के बाद लगता है कि अभी तो और सीखना बाकी है, अभी लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं. तो आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन. और अब क्योंकि आईटी जॉब चालू हो गया तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि अगर बुक्स लिखने लग गए तो फिर ब्लॉग लिखना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, बुक्स पढ़ना कम हो जाएगा. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. इतना कुछ है, बट आई होप सो कभी एक बार फिर ऐसा लॉकडाउन आए जब हमें काम करना भी अलाउड ना हो. सो मे बी 3 महीने मिले तो फिर मैं लिखना चालू करूँ. बट अभी लिखना तो है. आई डेफिनेटली वांट टू राइट, भले उसको 5 लोग खरीदें, बट आई वांट टू राइट अ बुक. Yeah, that's great. I will motivate you to write. और मैं पढ़ूंगी आपकी बुक for sure, 100%. अरे आपको तो भेजनी पड़ेगी because you also do a very nice blogging and book reviewing things. और आपका ये बुक शेल्फ जो पीछे रखा हुआ है, इसको देख के मेरे को आइडिया आया कि ऐसा बुक शेल्फ चाहिए. अब हमारे तो यहाँ ग्राउंड बालकनी है, तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, तो वही चल रहा है कहाँ बनाए कैसे बनाए. So that is another target of this year or maybe by next year कि ऐसा कुछ अच्छा बुक शेल्फ बनाना है. बिकॉज मेरे पास इस समय घर में 1000 बुक हो चुकी है ऑलमोस्ट. अब रखने की जगह नहीं है. या सो नीड अ शेल्फ फॉर दैट. सो करेंटली इट इज इन माय बेड. कुछ बेड के अंदर है, कुछ ऊपर एक शेल्फ में है, बट सही जगह से, ताकि मैं रोज उनको देख सकूं ना एक बार. बुक को देख नहीं पाता बिकॉज इट इज इन द बेड, तो मैं उसको कभी खोल ही नहीं पाता. तो आई नीड अ बुक शेल्फ आल्सो. तो आपसे सीखा वो सब. तो अपनी कभी किताब लिखे तो आपको सबसे पहले भेजना ही है. या ऑफ कोर्स. तो यार अभिलाष, that's all I wanted to know. बहुत मजा आया आपसे बात करने में. After like so many years we connected. Yeah. So thank you so much for being on the show. और आपको do you have any message for the readings for me? नहीं, बस यही है कि बुक्स, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी हॉबी है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए. बट बिकॉज रीडिंग हमको बचपन से बताया जाता है इज द बेस्ट हैबिट दैट वी कैन फॉलो. तो सबको पढ़ना चाहिए. हम लोग बुक्स देख के सोचते हैं कि इसको कौन पढ़ेगा. तो सबसे आसान तरीका, अगर आप रीडिंग जर्नी में घुसना चाहते हो तो आप शॉर्ट स्टोरीज की कोई किताब खरीदो. बिकॉज शॉर्ट स्टोरीज होती है तो आप एक दिन में 10-15 पेज पढ़ोगे, आपका एक स्टोरी खत्म हो जाएगा.
दूसरे दिन पढ़ोगे, ऐसे आप एक बुक खत्म कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या पसंद है, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप जाओ ब्रेटली की ऑटोबायोग्राफी ले लो, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी ले लो। वो एक किताब आप जब खत्म करोगे फ्रॉम फर्स्ट पेज टू एंड, जो आपको इंटरेस्ट आएगा कि क्या सोच रहे थे उस मैच के दौरान, व्हाट वाज सचिन तेंदुलकर थिंकिंग व्हेन ही वाज स्कोरिंग 98 अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2003 वर्ल्ड कप। तो ये सब चीजें बहुत आप करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ग्रो होगा। फिर और क्रिकेट की किताब पढ़ोगे, फिर इवेंचुअली आप बोलोगे यार इसमें तो मजा आ रहा है, चलो कुछ ऐसा भी पढ़ के देखते हैं। सो यही मैसेज है कि आप जो आपका इंटरेस्ट है आप एटलीस्ट उससे रिलेटेड किताब उठाओ एंड स्टार्ट गेटिंग रीडिंग इनटू योर हैबिट, इनटू योर रूटीन। ये होना ही चाहिए। मेक दिस योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर 2020। एटलीस्ट 5 बुक्स तो पढ़ो इस साल। सेम यार, आई मीन रीडिंग इट्स अ वंडरफुल हॉबी। और बुक्स तो क्या हमारे पास हमेशा रहते हैं, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं, बुक्स विल बी योर फ्रेंड्स फॉरएवर। तो इट्स अ ग्रेट हैबिट टू हैव। या तो थैंक यू सो मच अभिलाष। और कुछ आप कहना चाहते हो? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नॉट शेयर बट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं देखता था आप कई रीडर्स के साथ बात कर रहे हो, मैं सोचता था चलो कब हम भी इस मेरिटियस लिस्ट में आएंगे। आज फाइनली आ गए। मैंने आपको पहले पूछा था। हाँ पहले पूछा था बट आई वाज क्वाइट नर्वस। मुझे लगा आई थॉट दैट आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया ना, बिकॉज आई हैव ओनली रेड इंडियन ऑथर्स एंड आई डोंट थिंक दैट मैं बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दे सकता हूँ ऑफ डिफरेंट टाइप। आई हैव ओनली वन काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू गिव। सो थैंक्स फॉर दिस सारिका। या थैंक यू, क्योंकि यार आपकी वजह से मुझे भी अब बहुत सारे बुक्स के बारे में पता चला एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स आल्सो, उनको कुछ डिफरेंट कंटेंट मिला ना। सो इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और हम तो कनेक्टेड है ही, सो आई विल बी इन टच। बिल्कुल। Yes. चलो बाय। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।